And joining us on the broadcast is Ramveer himself. Mr. Tanwar, appreciate you joining us in our special edition. First up, if you can begin by talking to us about how you began your journey. You grew up in a small village, Dadha in Uttar Pradesh. Depletion of water resources is something which pushed you in taking up the cause of environment. Talk to us about how difficult the journey was, given that environment is something where we do not see many individuals speaking out loud and even doing as much as should be done, given the challenges that the country, the world at large is facing. Thank you so much, first of all, for inviting me for this special show. So, as you told, I grew up in village Dadha. This is in Gautam Buddha Nagar, Greater Noida. So, I started this work when I was doing my graduation. I have done BTech in mechanical engineering. So, I thought that our natural resources like ponds, rivers, canals are being degraded and being converted into the landfill site or sewage systems. So, we started it with my tuition students. I used to give tuition to my village kids. So, we started it from a tuition center from my house only in village Dada, and we started it like a Jal Chaupal, like water meeting we can say. So, after Jal Chaupal, we started to execute on the ground by cleaning the water bodies, by cleaning our surroundings, and later it converted in a whole mission of reviving the water bodies. Right now, we are like working in 7 states of India, and we have a good team. We have restored more than 60 ponds, and we are also converting the landfill sites into urban forest. And as you told, that we have converted almost 7 landfill sites into the urban forest in India. Oh yes, absolutely, Ramveer. In fact, we've seen those before and after pictures, and what a remarkable transformation. But obviously, the kind of work that goes into it is not easy, and it cannot be one man's job, while you also inspire so many people, to come there on the ground to clean up. What are the challenges you face, and how difficult is that process? Yeah, there are lots of challenges when we do these activities. So first challenge is like people don't believe us that we can do it really. So क्योंकि हमें ये सब देखने की आदत सी हो गई है, गंदी तालाब होने चाहिए तो गंदे दिखने चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभी की जनरेशन है वो इन चीज़ों को गंदा देखते हुए ही बड़ी हो रही है. उन्होंने दे कांट बिलीव कि ये बहुत सुंदर भी हुआ करते थे कभी. तो अभी तो ये ट्रस्ट डेवलप करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि येस वी कैन डू इट. दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वी हैव लर्न हाउ टू रेस्टोर द वाटर बॉडीज, हाउ टू मेक दीज वाटर बॉडीज सो ब्यूटीफुल, बट we have not learned till how we can restore the mindset of people, so they can support and they can maintain these water bodies for the lifetime. So we are not being able to make these water bodies self-sustainable for long time, because water bodies can be restored in 1 year, 2 year, but mindset cannot be restored in 1 year, 2 years. So it will take long time, around 40 to 50 years, like to do undo of the same thing. Yeah, that's the main challenge. Oh, and another challenge, like sometimes we face financial crisis because we need lots of machines, manpowers and equipments to do all these activities. So many times we have to wait just for financial support to do such of activities. Yes. Mr. Tanwar, I also believe that you are a TEDx speaker. Yeah. Tell us how difficult has the journey been to get the people along, because like I was telling earlier, it's not easy to get people along to work for a common cause environment, that is. How has TEDx essentially helped you in reaching out to more people? बिल्कुल, TEDx talks helped us a lot, because especially to reach out our youth. Because lots of youth, my friends, my colleagues and all the youth people watch the TEDx talks. So I delivered my first TED talk in 2019 I thought. So उसके बाद जो रीच था वो पीपल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. बहुत सारे यंगस्टर्स ने हमको सपोर्ट किया. Not only TED talk, we started a campaign called Selfie with Pond. So through the Selfie with Pond campaign, we connected lots of youngsters in India. ये हमें लगभग 28-29 स्टेट से हमें वो सपोर्ट मिलने लगा, और इवन बहुत सारे अदर कंट्रीज से भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया. तो ये बहुत अच्छा तरीका था जो लोगों से हमें सपोर्ट मिला. इवन मोर देन 10,000 यंगस्टर्स सपोर्टेड अस, एंड वी बिकेम ए बिग टीम.
आप कह रहे हैं 40-50 साल, but these 40-50 years are very, very critical when it comes to climate change, given how the situation is deteriorating at a very fast rate. एंड जैसा कि आपने कहा, एक तरफ से सरकार की मदद तो चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स दैट यू वांट टू बी एबल टू रिवर्स व्हाट हैज ऑलरेडी गॉन रॉन्ग. दूसरी तरफ से यूथ को इंस्पायर करना टू बी एबल टू गैदर दैट काइंड ऑफ मैनफोर्स ऑन द ग्राउंड. कलेक्टिवली आप किस तरह से इस गैप को ब्रिज कर रहे हैं? So we are taking the support of social media platforms. So when we identify a water body which need our support, which need to be get rejuvenated, so what we do, we just click some pictures of the current condition, we post it on the social media platforms like Facebook, Insta, LinkedIn, and we seek support. We request the youngsters, the professionals, the doctors, engineers, everyone can support us in their way. So lots of people from the corporate backgrounds come in front to support us. Lots of the engineers, lots of environmentalists, they come and support us. So these are the way how we are just filling the gaps. And like I told, the selfie with ponds. So we have restored more like 20 ponds. We have restored just because of the selfie with pond campaign. And इस कैंपेन में करना कुछ नहीं है. बहुत सारे यंगस्टर्स को, अगर आपके गांव में कोई तालाब गंदा है, आप उस गंदे तालाब के पास जाना है, सेल्फी लेनी है. यदि आपकी कोई मेमोरी जुड़ी हुई है बचपन की, आप बोलें कि मैं बचपन में नहाता था इस तालाब में, लेकिन अभी देखो कितना गंदा है, मैंने इसमें खेला है. सो वो मेमोरीज आपको सोशल मीडिया पे शेयर करनी है. उससे क्या होगा, एक हमारी भी कम्युनिटी डेवलप होगी जो तालाबों के बारे में सीरियसली सोचते हैं, और दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे कि हाँ, तालाबों के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं. और आप, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि आप तालाबों के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सोशल मीडिया एक तरीका हो गया, जल चौपाल एक तरीका हो गया. हम बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ताकि हम यूथ से जुड़ सकें. उनको आज की जो करंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है तालाबों की, वाटर बॉडीज़ की, वो उनको बता सकें और वहाँ से हमें सपोर्ट मिल सके. तो बहुत सारे वॉलंटियर्स एंड इंटर्न्स इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ से सामने आते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमें. जी, और हमें थोड़ा सा और बताइए कि कितने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप काम कर चुके हैं अभी, और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अभी काम करना बाकी है, जहाँ पे डिप्लीशन बहुत तेज़ी से हो रहा है? बिल्कुल. अभी हम जैसे यूपी में हम काम कर रहे हैं. सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं. ऐसे ही हरियाणा में पलवल है, मानेसर, गुड़गांव, इधर राजस्थान भिवाड़ी है ऐसे, और उधर एमपी में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं. तो ये बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट अभी हम 7 स्टेट्स में हमारे पास रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम दूसरे स्टेट्स में भी काम करें. जैसे पंजाब में अभी बहुत ज़रूरत है. पंजाब का अगर आप ग्राउंड वाटर देखेंगे तो लोगों को ग्राउंड वाटर की वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है. आप उधर आप साउथ इंडिया में देखेंगे, चेन्नई में अभी बहुत वाटर क्राइसिस आपको हर साल देखने को मिलता है. आप बेंगलुरु में देखेंगे पूरा साल वाटर क्राइसिस की वजह से न्यूज़ में रहा वो. आप इधर एमपी देखेंगे, एमपी में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है बट वो धीरे धीरे सूखती जा रही है. सो दीज आर द स्टेट्स वेयर वी विश टू वर्क रियली. आप जब किसी को डिटीरियोरेटिंग एनवायरनमेंट के बारे में उसके इम्पोर्टेंस समझाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आज इस माध्यम से रिपब्लिक डे के दिन जब इतने सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं, क्या आप उनको बोलना चाहते हैं? बिल्कुल. देखिए, हम जब भी जल चौपाल में लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उनको उसी चीज़ से रिलेट करते हैं कि पहले, आज से 20 साल पहले जब ग्राउंड वाटर 10 फीट 15 फीट पे अवेलेबल था, आज वही ग्राउंड वाटर 150 फीट 200 फीट पे अवेलेबल है. तो ये पिछले 20 साल में अगर इतना चेंज आ गया है, ग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट हो गया, तो आप अगले 20 साल का सोच के देखिए कि कहाँ पे होगा. और जिस तरह से बहुत सारे शहर हमारे ऑलरेडी वाटर क्राइसिस की वजह से न्यूज़ में आने लगे हैं, डे जीरो की हम बात करने लगे हैं इंडिया में बैठ के, वैसा ही है. और ये सब कुछ होता है क्योंकि हमें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमें
हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों हमें मिले हैं। तो हम फंडामेंटल राइट्स की तो कहीं ना कहीं बात करते हैं, हम उसके लिए धरना भी देते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमें ड्यूटीज़ है, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे से निभाने होंगे, तभी शायद हम अपने मौलिक अधिकारों को भी डिमांड कर सकते हैं। तो हमें आज जो अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो उन्होंने जो वाटर बॉडीज़ में तैरना सीखा है, गांव के तालाब में उन्होंने जो नहाना सीखा है, उसी वाटर बॉडी को आज हम एक गंदे सीवेज टैंक के फॉर्म में देख रहे हैं, उसी वाटर बॉडीज़ को हम लैंडफिल साइट के फॉर्म में देख रहे हैं। अब आप सोचिए, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एंजॉय किया है, पिछली पीढ़ी ने हमसे ज़्यादा किया था, लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगली पीढ़ी क्या करेगी। अगली पीढ़ी शायद इनको लैंडफिल साइट की शेप में ही देखेगी और वो कभी नेचुरल रिसोर्सेज का एंजॉय नहीं कर पाए। आज हम साफ तालाब देखने के लिए हम 200-300 किलोमीटर जाके पहाड़ों पे जाके देखते हैं, हम जाके दूसरे स्टेट्स में जाके एनसीआर वालों को साफ तालाब देखना मतलब मुमकिन ही नहीं होता है। तो अगर हमें वाटर बॉडीज़ को साफ देखना है और हम चाहते हैं कि हम रियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है जिस तरह से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को देखा है, उनको एंजॉय किया, हमारी अगली पीढ़ी भी उसी तरह से देखे। अदरवाइज जिस तरह से आज हम अपने बुजुर्गों के लिए बहुत प्राउड से बात करते हैं कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को इतने अच्छे से रखा था, तो अगली पीढ़ी शायद हमारे बारे में उतने प्राउड से बात नहीं करेगी, उल्टा हमें गाली देगी। तो इसीलिए हमें आज बहुत सोच समझ के इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना। दीज आर आवर हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, और हमें देश को ध्यान रखते हुए इन नेचुरल हेरिटेज को भी ध्यान में रखना है। Yes. Mr. Tanwar, like you were mentioning earlier, you've spearheaded restoration of 60 water bodies. If I were to ask you कि आपका गोल क्या है नेक्स्ट 5 years में, आप क्या सोच रहे हैं, कितने और स्टेट्स में रेस्टोरेशन ज़रूरी है और उस एरिया में आप कैसे अभी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम धीरे धीरे, हमारी कोशिश है कि हम पूरे देश भर में ये काम शुरू करें, और देश भर में ही क्यों, हम पूरे अलग अलग देशों में भी अपनी सेवाएं दें। और ये पॉसिबल होगा बहुत सारे यूथ जब हमारे साथ कनेक्ट होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जिस गांव में भी हम तालाब को रिजुवनेट करते हैं, वहाँ पे हम कुछ यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ट्रेनिंग दें, जैसे हमारा तालाब का रेस्टोरेशन कंप्लीट होता है, हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, नाउ यू आर द पॉन्ड मैन फॉर दिस विलेज, नाउ यू आर द पॉन्ड वॉरियर फॉर दिस विलेज, ताकि वो उस गांव के लिए, आसपास के गांवों के लिए हमारे क्लोन जनरेट हो सके। वो फिर हमारे, हम वहाँ पे रहें ना रहें फ्यूचर में, फिर वो आसपास के गांवों के तालाबों को साफ़ कर सके। या फिर कल को कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है तालाबों को रिजुवनेट करने के लिए, तो ही कैन वर्क एज ए रिसोर्स पर्सन, और वो और सारे यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दे सके। तो हम चाहते हैं कि देश भर में लाखों करोड़ों पॉन्ड मैन जब तैयार हो जाएंगे, पॉन्ड वॉरियर्स तैयार हो जाएंगे, तब शायद हमारा मिशन एक साथ बहुत अच्छे से लॉन्च भी होगा, और ये एक तरह से बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, और हम शायद देश के पूरे गाँव में और पूरे शहरों में, पूरे ज़िले में हम फैल जाएंगे, और हमारी पॉन्ड वॉरियर्स की एक कम्युनिटी होगी जो हम लाखों करोड़ों तालाबों को एक साफ कर सकेंगे। तनवर जी, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी ज़रूरी बात सभी तक पहुंचाने के लिए। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी वेक अप एंड वी शुडंट एक्चुअली बी हैविंग कॉन्वर्सेशंस अबाउट डे ज़ीरो. It is concerning, as you say, especially for the generations to come. So I hope this message has gone across to all our viewers who are listening to you at this point on Republic Day. We have to slip into a very short commercial break right now. We'll be back on the other side as we continue with our special broadcast. Do stay tuned.